नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हमारे पास है ग्रेड 3 की बुक जो कि है न्यू प्राइमरी ऑक्सफोर्ड साइंस, और ये है हमारे पास सेकंड एडिशन की। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 जो कि है हमारे पास सर्किट्स। सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे आज, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, और आप भी घर में सर्किट कैसे बना सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले इस यूनिट की हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग के लिए आपके पास ऑडियो बुक्स होनी चाहिए। यू कैन डाउनलोड दी ऑडियो बुक्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जस्ट राइट डाउन किड्स क्लब ग्रामर स्कूल ग्रेड 3 और वहाँ से आप इजीली ऑडियो बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स विल हेल्प यू टू हैव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। इसके साथ साथ ऑडियो बुक्स में हमने साइंस के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स भी डाले हैं सो दैट यू कैन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज यूनिट्स इंशाल्लाह। चलते हैं ऑडियो बुक्स की तरफ। Electricity and magnetism. Electricity and magnetism. Unit 9 Circuits. Unit 9 Circuits. Electricity that moves along a wire is called an electric current. Electricity that moves along a wire is called an electric current. An electric current can flow only through certain materials. An electric current can flow only through certain materials. Conductors and insulators. Conductors and insulators. Some materials, like metal and water, let the electric current flow through them easily. Some materials, like metal and water, let the electric current flow through them easily. They are called conductors. They are called conductors. Other materials, like rubber and wood, do not let the electric current flow through them. They are called insulators. They are called insulators. Flow of current. Flow of current. A battery has chemicals in it and stores energy. A battery has chemicals in it and stores energy. When a battery is connected to a bulb by two wires, it will light the bulb. When a battery is connected to a bulb by two wires, it will light the bulb. An electric current can flow from a battery or cell. An electric current can flow from a battery or cell. It passes through the wires to light the bulb. The wire is called flex and is covered with plastic, since plastic is an The wire is called flex and is covered with plastic, since plastic is an insulator. This is a complete circuit that allows the electric current to flow. This is a complete circuit that allows the electric current to flow. This is a complete circuit that allows the electric current to flow. Battery. Battery. Filament. Filament. Bulb. Bulb. Flex. Flex. A simple circuit. A simple circuit. Let us see all that happens before a bulb lights up in a circuit. Let us see all that happens before a bulb lights up in a circuit. The electric current flows out of the top of the battery and along the wire. The electric current flows out of the top of the battery and along the wire. It then goes through the filament, the tiny string of wire inside a bulb, in the bulb and then along the second wire. It then goes through the filament, the tiny string of wire inside a bulb, in the bulb and then along the second wire. It goes back into the bottom of the battery. It goes back into the bottom of the battery. A complete circuit. A complete circuit. The path along which the electric current flows is called a circuit. The path along which the electric current flows is called a circuit. The path along which a complete circuit is needed for an electric current to flow. A complete circuit is needed for an electric current to flow. Electricity cannot jump across a gap.
Electricity cannot jump across a gap. A complete circuit is always closed with no gaps in between. A complete circuit is always closed with no gaps in between. The current flows out through one end of the battery and flows back in through the other end, so the loop or chain is complete. The current flows out through one end of the battery and flows back in through the other end, so the loop or chain is complete. Look at this picture. Do you think this bulb will light up? Look at this picture. Do you think this bulb will light up? जी हाँ, ऑडियो बुक्स हमने पढ़ ली हैं। अब हम रीडिंग एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इस यूनिट में हमारे लिए क्या है। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास सर्किट्स, और सर्किट्स को जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्किट में ट्रैवल कौन सी चीज़ करती है, सर्किट्स चलते किससे हैं। जाहिर है सर्किट्स के अंदर एनर्जी होगी तो वो सर्किट्स काम करेंगे, और वो एनर्जी उनको किस चीज़ से मिल रही है, वो एनर्जी उनको मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी से, जो बिजली है, जो बिजली ट्रैवल हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजली बनती कहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ पर है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स से बन सकती है। अब सोलर एनर्जी जो सूरज से हमें एनर्जी मिल रही है वो स्टोर की जा सकती है बैटरीज़ में, और वो फिर कन्वर्ट होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह हमारे पास जो हमारे जो घरों में लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं या जो घरों की सप्लाई है, ये यूजुअली स्टेशंस, पावर स्टेशन से आती है, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस से आती है। इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस में पहले बिजली बनती है और वो फिर बड़े बड़े जो वायर्स होते हैं जिनको हम केबल्स बोलते हैं, मोटी वायर्स जो होती हैं, वो उनके थ्रू आते हैं हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स वगैरह में, हमारे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब चूँकि हमें पता लग गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस से आती है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे होता है ये हम जानेंगे। An electricity that moves along the wire is called electric current. ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो वायर में मूव कर रही है इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये पावर स्टेशंस से जो हमारे पास बिजली आ रही है, जो केबल्स में बिजली आ रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब चूँकि हमें इलेक्ट्रिसिटी का पता लग गया है, अब हम सर्किट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्किट्स हमारे पास किस किस्म के होते हैं। सर्किट्स हमारे पास बेसिकली हमारे पास दो किस्म के सर्किट्स होते हैं। एक कंप्लीट सर्किट होता है हमारे पास और एक इनकम्प्लीट सर्किट होता है। अब हमें कैसे पता होगा कि एक कंप्लीट सर्किट क्या है और एक इनकम्प्लीट सर्किट क्या है? हम आज आपको बताएंगे कि कंप्लीट सर्किट कैसे होता है और आप कैसे बना सकते हैं कंप्लीट सर्किट। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। वो मटेरियल्स कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्म है कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जैसे कि हमारे पास केबल वायर्स हैं, मेटल्स हैं, वाटर है। इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से बिजली पास हो सकती है, इन चीज़ों से बिजली ट्रैवल हो सकती है। अब अगर आपने कभी तार के अंदर देखा हो तो उनके अंदर गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की पतली सी मेटालिक वायर्स होती हैं। इन मेटालिक वायर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ट्रांसफ़र होती है। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। अब ये मटेरियल्स जो हैं, ये मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं सर्किट्स बनाने में। अब जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर हमारे पास कौन सी चीज़ है? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, जैसे कि वुड है, रबड़ है, प्लास्टिक है। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये जो वायर्स होती हैं इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग क्यों हुई होती है या रबर की कोटिंग क्यों हुई होती है? क्योंकि ये इंसुलेटर्स हैं। अगर आप इसको हाथ लगाते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर इनके ऊपर रबर ना लगा हुआ हो, इनके ऊपर प्लास्टिक ना लगा हुआ हो तो करंट आपको भी लग सकती है। तो आपकी सेफ्टी के लिए इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग लगाई जाती है। इन चीज़ों को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। अगर आप वहाँ पर एक डायग्राम देखें तो आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें बैटरी है
और एक बल्ब लगा हुआ है और कुछ वायर्स कनेक्टेड हैं बल्ब के साथ। जो बैटरी होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। जाहिर है बैटरी को भी एनर्जी दी गई है ना, तभी उसके अंदर ताकत है, एनर्जी है। जब उसके अंदर ताकत होगी तो वो बल्ब को ग्लो कर सकेगा, बल्ब को लाइट अप कर सकेगा। अब जो बैटरीज़ होती हैं, जो सेल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स जो हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है। जब उन बैटरीज़ को चार्ज कर दिया जाता है, उनके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी जाती है, तो तब वो एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। अब आप अगर देखें तो उनके साथ एक बैटरी के साथ एक वायर कनेक्टेड है ऊपर की तरफ और एक वायर कनेक्टेड है नीचे की तरफ, और वो वायर्स जो हैं इनको हम बोलते हैं फ्लैक्स। अब ये वायर्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं एक छोटे से बल्ब के साथ, जो कि बाद में लिट अप किया जाएगा, जिसको बाद में जलाया जाएगा, ऑन किया जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ बैटरी। अब अगर आप बल्ब के अंदर देखें तो ये छोटा सा फिलामेंट लगा हुआ है, जो छोटी सी तार लगी हुई है ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब बैटरी से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्लक्स में, वायर से ट्रांसफ़र होगी बल्ब के फिलामेंट में, और फिलामेंट से ट्रांसफ़र होगी जो दूसरी वायर है उसके ज़रिए, और फिर बैटरी के नीचे। इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है, ये चेन कंप्लीट होता है, और जो एनर्जी है वो सप्लाई होती है और बल्ब ग्लो करेगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कंप्लीट सर्किट की, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है, वायर्स टूटी हुई नहीं हैं, वायर्स में कोई गैप नहीं है, और ये बल्ब बिल्कुल ठीक तरीके से ग्लो कर रहा है, एनर्जी भी बिल्कुल ठीक तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऐसा सर्किट जिसमें कोई गैप ना हो, उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सर्किट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर इनकम्प्लीट सर्किट के बारे में। अब इनकम्प्लीट सर्किट क्या होगा, आपके पास डायग्राम भी आपके सामने बनी हुई है कि इनकम्प्लीट सर्किट एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें बैटरी भी होगी, वायर्स भी होंगी, बल्ब भी होगा, लेकिन उन वायर्स में गैप होगा। बैटरी तो चार्ज है ऑलरेडी, बैटरी में तो कोई मसला नहीं है, बैटरी के अंदर एनर्जी भी है, बैटरी सप्लाई भी कर रही है एनर्जी, बल्ब की तरफ एक तार जा भी रही है, लेकिन जो दूसरी तार है, जो दूसरी फ्लक्स है, वो टूटी हुई है, उसमें गैप आया हुआ है। जब उसमें गैप आ जाता है तो ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट नहीं रहता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो ही नहीं हो रही। ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो ना हो सके, उस सर्किट को हम कहते हैं इनकम्प्लीट सर्किट। तो प्यारे बच्चों, इस यूनिट में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और इसके साथ साथ हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा है। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। और हमने दो सर्किट्स पढ़े हैं, इसमें कंप्लीट सर्किट पढ़ा है और इसके साथ साथ हमने पढ़ा है इनकम्प्लीट सर्किट। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको इस यूनिट की समझ आ सके इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।